Good evening, everyone. Yes, I'm sorry, bit joining late, and hope everyone getting my picture clarity as well as sound too. Yes, sir. Yes, thank you, everybody. Okay. In last lecture, as I remember, we have discussed the topic called, as you can say, chemical reactions and equations, and even we have discussed some of the MCQs in that topic. Okay, am I right? So now, today, as the admin told me, we have to continue with the chapter called metallurgy, because that is the only chapter remaining from chemistry part. Am I right? So, I would like to listen from your side. Is there any difficulty, doubt here in the MCQs of this chemical reactions and equations? है किसी को कुछ डाउट उसके अंदर? Yes, please. No, sir. No. Okay. ठीक है. Then I will start with metallurgy chapter. Is it okay with everyone then? Yes. Yes. Let's proceed with this metallurgy then. This is a kind of chapter which may feel a bit complex because this chapter has a combination of conceptual part as well as some theoretical parts and chemical reactions. Even in this chapter we discuss or we have more information, lot of information is there here in this chapter called metallurgy. But this metallurgy, what is the meaning or what is meaning by this metallurgy? Metallurgy का meaning क्या होता है? See, already. Yes, please. Yes. Sir, I think we simply say that the separation of metal and what is metal, and corrosion also is a type of metal in the type of metallurgy. Okay. And various types of reactions, equations. Yes, yes. Appreciate your interaction. And many of the points you put forth are correct, but some points are somewhere misunderstood by you. So that need to be corrected. Metallurgy is a very simple process of, you can say, mining, which is involved of ores and minerals, and the separation of metals from its ores and minerals. Whatever the process involved in all these one, that is nothing but the metallurgy. So metallurgy is the process of separation of metal from its ores and minerals. It's called as metallurgy. So, हम अच्छी तरह जानते हैं, without metal, life of human being is simply difficult because many of the things what we use in our daily routine life, these are of metals. They are made up of the metals or metal is involved in this one. देखिए हम लोग जितने सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज करते हैं, सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स मेटल्स के बने होते हैं, उनका इंजन मेटल का बना होता है, तो उसके अंदर प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, रबर पार्ट्स होते हैं, बट जनरली जो मेन होता है उनके अंदर वो मेटल्स होता है. किसी भी गाड़ी का बॉडी जो बनता है वो मेटल का बनता है, चासी गाड़ी का मेटल का बनता है. तो सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर मेटल्स के होते हैं, हमारे साइकिल्स मेटल्स के होते हैं, हमारे घर के अंदर जितने सारे यूटेंसिल्स हम लोग यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं, वो सारे मेटल्स के होते हैं. हम जिस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, जिस घर के अंदर रहते हैं, आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग मेटल्स के साथ ही बनाए जाते हैं. ब्रिजेस मेटल के साथ बनाए जाते हैं, काफी बड़े बड़े बिल्डिंग बड़े बड़े ब्रिजेस मेटल के साथ बनाए जाते हैं. हमारे घर के विंडोज होते हैं, वहां पे ग्रिल होता है. मेटल शीट्स के भी घर बनाए जाते हैं, तो वहां पे भी मेटल आता है. तो आप देखिए ना कि अगर मेटल नहीं होगा तो काफी सारी चीजें, हमारे मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स देखते हैं हम लोग, मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स, टीवी के स्पेयर पार्ट्स, काफी सारे नट बोल्ट्स एंड स्क्रूज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. There are different types of chain and all. Everything is mostly related with the metal. All these things are related with the metal. So simply, metal के सिवाय हमारा डेली रूटीन बहुत ही डिफिकल्ट होगा, डेली रूटीन लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होगा, डेवलपमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होगा. क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न जो इवोल्यूशन शुरू हुआ, वो इवोल्यूशन एक्चुअली विद इवोल्यूशन ऑफ इंजन के इवोल्यूशन के साथ ही शुरू हुआ. अगर इंजन नहीं ढूंढा जाता था तो शायद ये हमारा कम्युनिकेशन, जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं बनते थे, और वो नहीं बनते तो हमारा डेवलपमेंट भी नहीं होता था.
तो हमारे आज के डेवलपमेंट में इंजन का बहुत बड़ा रोल है, और कोई भी दुनिया का इंजन मेटल से ही बनता है। भले बाकी चीजों को कुछ जगह ऐसा होता है कि मेटल कैन बी रिप्लेस बाय द प्लास्टिक, बट आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो कि प्लास्टिक का बना है, मेटल्स का ही बना होता है इंजन। बिकॉज मेटल्स के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, दैट्स व्हाट वी कैन से। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। एक्चुअली मी माई सेल्फ आई डोंट लाइक दिस हेडिंग टू गिवन टू दिस चैप्टर। काफी एक्सपर्ट लोगों ने चैप्टर लिखा होगा, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा ये परफेक्ट नहीं लगता है मेटलर्जी चैप्टर। द रीजन बिहाइंड दैट, हमारे 10th स्टैंडर्ड के मेटलर्जी चैप्टर के अंदर आप क्या क्या डिस्कस करते हो आप बता दीजिएगा, और फिर देखते हैं कि आप लोग हेडिंग आइदर इट इज रॉन्ग और राइट, हम उसके बारे में चले जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर, मेटलर्जी चैप्टर के अंदर? सो एवरीवन, एनीवन amongst you? Sir, separation of metals. Very what? Separation of metals from ores. Pressure? No metals, sir. हाँ, metals. Separation of metals from ores. Separation of metals. हाँ. Yes, sir. हाँ. Separation. Okay, very good. And preventing of metals, sir. जो हम मेटल के लिए सेप बनाते हैं, हाँ, उसमें जिंक का जो प्लेटिंग वगैरह करते हैं, हाँ, तो हाँ, और एलॉय, हाँ, एंड सर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, एंड सर यस सर। ओके, बाकी कोई और बताना चाहेगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करते हैं, मेटलर्जी के अंदर क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? यस, एनीवन? ओके, ठीक है, मतलब most of the students are not able to speak on this topic. What we have to discuss under this metallurgy chapter? कुछ तो याद आता होगा आप लोगों को कि मेटलर्जी चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं और क्या क्या टॉपिक है उसके अंदर इन्वॉल्व। चलो, टॉपिक अगर डिटेल में नहीं बताया तो कम से कम टॉपिक की हेडिंग तो बता दीजिए कि ये चीजें सर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं आप लोग। सर मिनरल और यस यस मिनरल और सर मिनरल मेटलर्जी, फिजिकल मेटलर्जी। ओके, इसका मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बारे में बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, कॉम्प्लेक्स है भी बिकॉज इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट भी है, थियरी भी है और इंफॉर्मेशन भी है, तो इस कारण से थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है। जैसे केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम पार्ट कॉन्सेप्ट्स का था, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा थियरी नहीं था। ऐसे इस चैप्टर के अंदर थियरी बहुत ज्यादा है, चैप्टर की लंबाई उस हिसाब से और लेंथ इस कारण से थोड़ी ज्यादा बनती है। हेलो सर। यस यस यस, बोलो सर। तो आपको क्या लगता है कि इस चैप्टर का सही नेम क्या होगा सर मेटलर्जी की जगह? यस यस, मैं वही बताना चाहता हूँ, इसीलिए तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि इस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है और हमें हमारे चैप्टर का नाम क्या दिया है। जैसे मैंने बताया कि जब हम ये देखते हैं इस चैप्टर के अंदर की क्या कंटेंट है, तो अभी तुम में से कुछ लोगों ने ये समराइज करने की बात की कि क्या इस चैप्टर के अंदर का कंटेंट क्या है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए इस चैप्टर के अंदर डिस्कस क्या करते हैं हम, कंटेंट देखते हैं तो इसके अंदर देखते हैं हम लोग कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, दीज आर द मेनली सब्सटेंसेस व्हाट वी आर डीलिंग, हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो इस चैप्टर में ये भी देखते हैं हम लोग कि व्हाट आर द मेटल्स, व्हाट आर द नॉन मेटल्स एंड व्हाट आर द मेटालॉइड्स। दूसरी बात देखते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, मतलब मेटालॉइड्स के तो ज्यादा है नहीं है, बट मेटल्स के और नॉन मेटल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हो। एज वेल एज इस चैप्टर के अंदर हम ये भी डिस्कस करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, एंड वेरियस मेथड्स ऑफ मेटलर्जी, various concepts of metallurgy or various processes involved in the metallurgy. ओके, अभी मेटलर्जी का डेफिनेशन अगर डिस्कस करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या है, मेटलर्जी का डेफिनेशन यही है, दैट इज सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, जो इस बुक के अंदर भी लिस्टेड है। इस डेफिनेशन को देखेंगे आप लोग तो
So metallurgy is the process of separation of metals from its ores and minerals. That is called as metallurgy. Agar metallurgy means separation of metals, non-metals, separation of metals from its ores and minerals agar hai, then that is called as metallurgy. यहाँ पर नॉन मेटल्स के बारे में भी कुछ बातें बताई, जबकि नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन यहाँ पे नहीं बताया गया है किसी को. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी बताया गया है. स्टार्टिंग में आता है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इंट्रोडक्शन के लिए सही बात. But when we say it's a metallurgy, that topic has to be stuck to the metallurgy. Means what are the concepts of metallurgy, what are the processes of metallurgy, and that has to be only for the metals. Here the content is beyond the metals. The content is beyond the metal. Content is of ionic substances. Content is of physical and chemical properties of metals and non-metals. And that's why metallurgy doesn't suit to this chapter. At the last, at the end of the chapter, या फिर you can say middle part के बाद, एक half of this section is related with the metallurgy, purely metallurgy. तो metallurgy के साथ सिर्फ half chapter ही concern है. शुरुआती का part जो है वो metallurgy के साथ concern नहीं है, उसे supportive बनाता है. उस हिसाब से तो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ सपोर्टिव, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. लेकिन फिर भी मेटलर्जी बात करेंगे तो प्योरली मेटल के साथ डील करता है, यहाँ पे नॉन मेटल के साथ डील नहीं करता है. एंड दैट्स व्हाई वो उस हिसाब से उतना करेक्ट हेडिंग नहीं है. हाँ, अगर ऐसा बोलते थे हम लोग द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइसोलेशन सेपरेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड द प्रॉपर्टीज, तो बात अलग था. तो उसी हिसाब से कुछ टॉपिक का नाम मेटलर्जी या फिर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस तरीके का कुछ तो होना चाहिए था. तो एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स भी आएंगे, नॉन मेटल्स भी आएंगे, मेटलॉइड्स भी आएंगे. तो दैट काइंड ऑफ हेडिंग वाज एक्सपेक्टेड, बट इट्स कंटिन्यूइंग हेडिंग. और अगर जब मेटलर्जी की बात आती है तो उसके अंदर प्योरली मेटल के बारे में बात होनी चाहिए थी, जहाँ पे नॉन मेटल्स, आयनिक सब्सटेंस नहीं आनी चाहिए. फिर भी यहाँ पे दिए हुए हैं. तो चलो कोई बात नहीं, तो टेक्निकल बात है, हेडिंग क्या है. वैसे भी हमारे लिए मैटर करता है कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेंट, है ना. हेडिंग व्हाटएवर द गिवन that doesn't suit, it's not wrong I am saying, but it doesn't suit to this topic, because apart from the metals many topics are involved here in this one, and that's why that doesn't suit that what we can say. But as the science, we discuss the content, we discuss the topics involved in this, so it doesn't matter for us what the heading is this. We mainly dealing with the concepts and content. What is the content of this chapter? As we have listed, what is the content of this chapter? This chapter has the introduction of metals, non-metals, and metalloids. So we should be clear with what are the metals, what are the non-metals, and what are the metalloids, as well as we have to discuss the physical properties of metals and non-metals. दोनों के भी physical property और दोनों के भी chemical property. ये भी इस chapter के अंदर discuss करते हैं हम लोग. फिर हम लोग discuss करते हैं, you can say ionic substances discuss करते हैं, ionic compound discuss करते हैं, and then हम लोग जाते हैं actual metallurgical concept and process of isolating of the elements. मतलब कैसे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कैसे एलिमेंट सेपरेट किए जाते हैं, प्योर फॉर्म में लाए जाते हैं. चाहे एल्यूमिनियम की बात आती है, चाहे आयरन की बात आती है, कॉपर की बात आती है, या फिर दूसरे किसी मेटल की बात आती है, कॉपर की. ये सारा यहाँ पे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. दैट इज एक्चुअली मेटलर्जी. बट ये बात सही है, मेटलर्जी को जाने से पहले कुछ थोड़ा इंट्रो होना जरूरी है. इस हिसाब से देखते हैं हम लोग. सबसे पहले आता है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो विल एनीवन डिफाइन what are the metals, what are the non-metals, and what are the metalloids? We should be clear with this. Yes, sir. Yes, correct. Metal, we can say that metal is good conductor for electricity. Yes. And non-metal is bad conductor for electricity. Mm-hmm. And metalloids means some parts of metal and some parts of non-metals are, we can say that both of parts are available in metalloids. Okay. And metal had luster. Mm-hmm. But non-metals did not have luster. Okay, good. And metal have conductivity. Mm-hmm. Very good. And but non-metals have not conductivity. Mm-hmm. And metal boiling point is high, you can say that. And non-metals is, I think, low. Very good. We can say that, simply say that the transfer of heat is exit from metals. We can transfer of heat is faster process is exit from metals, and non-metals is not. Okay.
ओके, अब देखिएगा, बराबर आपने सही कहा, काफी सारी बातें उसके अंदर की एकदम परफेक्ट और सही आती है। मेटल को, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को डिफाइन भी किया जा सकता है, बट सिर्फ डेफिनेशन से उसका परफेक्ट अंदाजा नहीं आता कि व्हाट इज कॉल्ड एज मेटल एंड व्हाट इज अ परफेक्ट नॉन मेटल। इसीलिए there are some certain set of properties, there are some certain set of properties, there are some properties of metal that has to be listed 1 2 3 4 5. There are some properties of non-metals, or there are some properties of metallites. So that's why whatever you stated as of now are the different properties related with the metals, maybe with non-metals and maybe with metallites. साइंटिफिकली अगर हम मेटल्स को डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में अगर मेटल को डिफाइन करते हैं, तो metals are the element which has a tendency to lose the electrons to form electropositive ions. Because हम जानते हैं there are 118 elements in the periodic table. हमारा जो periodic table है, मैं थोड़ा सा बेसिक में लेके जा रहा हूँ because that concept has to be clear. So this is what we can say, periodic table है हमारे इस तरीके से structure उसका मिलता है, first, second, 3 to 12, 13 to 18, और यहाँ पे 1 2 3 1 to लेकर 7 तक ऐसा मिलता है, और यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप मिलता है periodic table का। तो एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स आर वेरी वेल क्लासिफाइड। ना होता क्या है इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये वाला यहाँ तक, सो ये वाला पार्ट यहाँ पे ये सारा मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, सो ऑल दीज आर मेटल्स ऑफ लिस्ट। यहाँ पे कुछ पार्ट है जो आपका मेटलॉइड पार्ट, और ये जो पार्ट है आपका ये सारा नॉन मेटल का पार्ट है। तो आप देखिएगा, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखते हैं तो दुनिया में मेटल का नंबर बहुत ज्यादा है, मेटल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, नॉन मेटल्स बहुत कम है, और मेटलॉइड तो बहुत ही कम है। मतलब देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स व्हिच आर मेटलॉइड्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल इन नेचर एंड देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर नॉन मेटल्स इन द नेचर। सो इसलिए एज पर द डेफिनेशन अगर डिस्कस करते हैं हम लोग, द एलिमेंट्स व्हिच हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कैटायंस आर कॉल्ड एज मेटल्स। The element which has a tendency to gain the electron and forms anions are called as non-metals, and these are the elements which has a tendency to lose electrons or maybe gain electrons. So electron lose भी कर सकते हैं, electron gain भी कर सकते हैं, and that's why this shows the properties of some type metals or maybe some type of non-metals. And that's why they are called as metalloids. So metalloids shows the properties of metals as well as non-metals. तो दोनों के प्रॉपर्टी उनके अंदर कम ज्यादा तरीके से दिखाई देते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करते हैं एज लाइक मेटल, और कभी कभी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं एज लाइक नॉन मेटल। उनके सामने कौन आ रहा है उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं, और वो बिहेव उनका सामने आता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे, द एलिमेंट व्हिच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैटायंस, these are generally called as metals, and the elements which have tendency to gain the electrons from anions are called as non-metals. And metalloid has the tendency to lose or sometimes gain electrons as like metals and non-metals. So that's why they are called as metalloids. This is by the definition of metals, non-metals, and metalloids. But यहाँ पे इस chapter के अंदर when we talking about the metallurgy, how to make the foundation for the metallurgy, then we need to discuss the properties of metals, properties of non-metals and properties of metalloids को। So जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पे उसी हिसाब से ये है कि फिर metals की अगर बात करते हैं तो metals are mostly existing in solid phase, मतलब state की बात करते हैं, phase की बात करते हैं, तो metals are mainly in solid phase, non-metals are mainly in, you can say, liquid और gaseous phase में, they are gaseous phase, और metalloid की बात करते हैं तो दोनों phase में थोड़ा सा कुछ solid phase में कुछ gaseous phase में इस तरीके से वो exist करते हैं, like the metalloids. So this is what we can say regarding the state only. There are some exceptions to him. जैसे कि हम लोग बात करें कि metals are mainly existing in a solid phase, but there are some of the metals which exist in a liquid phase, as like mercury, which exists in a liquid. और ये याद रखिएगा, जो exceptional है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना आपको कॉमन मेटल के बारे में जनरली नहीं पूछा जाएगा, ऐसी छोटी मोटी जो बातें होती है कि मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, ये सबसे पहला पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बच्चे यही याद नहीं रखेंगे, यही भूल जाने की चांसेस ज्यादा होती है। I think gallium also a liquid Yes, metal. very good, very good. Gallium is also one of the metal which exists in liquid phase. तो ये दो याद में रखने पड़ेंगे, बिकॉज इसी के ऊपर एमसीक्यू पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे केस में। So that's why generally metal exists in a solid phase, but there are mercury and gallium like metals which may exist in a liquid phase. No, they surely exist in a liquid phase.
नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल के बारे में कहा कि जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं दैट एग्जिस्ट आर इन दे बी सॉलिड स्टेट और मे बी इन गैसियस स्टेट, दोनों फेज में वो एग्जिस्ट करते हैं, और एक्सेप्शनली देयर आर सम व्हिच एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। तो नॉन मेटल सॉलिड फेज में भी होते हैं और गैसियस फेज में भी होते हैं, और कुछ लिक्विड फेज में होते हैं, लाइक यू कैन से बेरियम लाइक जो होते हैं दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज टू, वो लिक्विड फेज में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन लाइक होते हैं जो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। So this is what we can say regarding the phase. And metalloid तो जैसे मैंने बताया कि सॉलिड फेज में भी है, वो गैसियस फेज में भी आपको मिलता है, तो वहां पे उसी तरीके से आपको के अंदर मिलता है। दैट इज यू कैन से स्टेट के बारे में। उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो देखी हमने मेटल्स के बारे में, मेटल्स आर यू कैन से हैज द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मेटल हैज lustrous property. So every metal has the lustrous property. Most of the metal has a luster. Lustrous property क्या होती है हमारे चित्र जानते हैं? That is when light falls on it, they reflect the light, and that's why surface appears to be shiny. Freshly cut metal surface, अगर हम metal का पीस लेते हैं और उसे कट करते हैं तो आपको fresh metal, चमकता हुआ metal दिखाई देता है। That is called as lustrous property. उसके पीछे reason क्या है? When light falls on it, that reflects some part of light because of the excitation of electrons and all, and that's why it appears to be shiny. और इसलिए वो shiny surface आपको दिखाई देता है। So that is, you can say most of the metals have lustrous property. When we talk about the non-metals do not have the lustrous property. नॉन मेटल कोई lustrous property नहीं है, they do not have the shining surface, और ये उसके अंदर एक important बात उसके अंदर metal has the lustrous property. Metals are good conductors of heat and electricity, है ना? Most of the metals are good conductors of heat as well as of the electricity. Even there are some exceptional cases which are not conductor of heat or you can say electricity, but mostly most of the metals are good conductors of heat and electricity, whereas non-metals are not conductors of heat and electricity. Even there are some exceptional cases like the graphite. Graphite and yes sir, graphite, which is not a good conductor of electricity, which is a good conductor of electricity, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। So ये exceptions आपको याद में रखने हैं। मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि ये जब पढ़ रहे हैं आप लोग इस चैप्टर को सीईटी के लिए, तो आपको याद रखना कि exceptions है। और मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूंगा, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 11 में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटलर्जी नाम का चैप्टर 11 में भी है, जहाँ पे वापस ये सारे टॉपिक वही भी उसी हिसाब से आ जाते हैं, उसके कनेक्शंस में आ जाते हैं। और साइंस में ऐसा नहीं होता ना कि 10th का साइंस अलग था और 11th 12th का साइंस अलग है, कॉन्सेप्ट वही होते हैं। मर्क्यूरी स्कूल लाइफ में भी लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, कॉलेज लाइफ में भी लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, वो साइंस है, वो हमेशा वही रहेगा। तो दैट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल कभी भी, और इसलिए ये पढ़ते समय थोड़ा इसका याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि बारीकी से पढ़ना है। जनरली आपको सीईटी में यही फंसाया जाता है, छोटे मोटे जो चीजें जो एक्सेप्शन है वही पूछे जाते हैं, वही हमें वहां पे प्रिपेयर करके रखने हैं। So in that case, metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are not good conductors of heat and electricity. ये भी उसी के अंदर आ जाता है। Metals के बारे में और एक important बात है, metals are malleable and ductile. This is also one of the important property of the metals. Metals are malleable and ductile. Malleable ductile का मतलब क्या होता है कि अगर हम मेटल के पीस को हैमर करते हैं, मेटल पीस को हैमर करते हैं, तो मेटल पीस कैन बी कन्वर्ट इनटू मेटल शीट, है ना? मेटल के शीट्स बनाए जा सकते हैं। तो मेटल का एक पीस हो सकता है कि मानो ऐसा मेटल का एक पीस हो सकता है, उसे अगर हम गर्म करके हीट करके अगर हैमर करते हैं, उसे शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसलिए मेटल शीट्स के घर भी बनाए जाते हैं, जिसे पतरा कहा जाता है, शायद आप जानते होंगे। सो बहुत सारे लोग उसी घर में रहते हैं, ये मेटल शीट्स के घर बनते हैं, पतरे के घर बनते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से मैलिएबिलिटी, मतलब मेटल कैन बी कन्वर्टेड टू थिन शीट लाइक substance or sheet like structure, and that is nothing but you can say a malleability. Even metal has the ductility. Ductility मतलब जैसे कि हम लोग गम लेते हैं और गम को अगर ऐसा खींचते हैं तो आपको उसका एक तार जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक ऐसा थिन फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, and that is you can say ductility. मेटल के केस में भी होता है कि हम जितने सारे वायर्स देखते हैं वो सारे वायर मेटल्स के बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट के लिए जो वायर होते हैं वो मेटल्स के बने हैं। तो मेटल्स को वायर में भी कन्वर्ट किया जाता है, मेटल को अगर ऐसे खींचा जाता है गर्म करके या वैसे भी अगर ताकत से खींच पाएंगे हम लोग, तो उसका भी एक ऐसा थिन एक बहुत ही एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर उसका बनता है, एंड दैट इज यू कैन से वायर लाइक स्ट्रक्चर उससे बनता है। सो मेटल को वायर लाइक इसमें कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। सो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर, कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू द वायर, दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द मेटल। मेटल हैज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल हैज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि मेटल को ऐसा अगर हम तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, मेटल ऐसा बेंड हो जाता है, बेंडिंग आता है। तो होता क्या है कि अंदर का जो पार्ट है वो अलग तरीके से आएगा और इधर का पार्ट थोड़ा टेंस हो जाएगा, दैट इज, बट लेकिन बेंड हो जाता है। मेटल कैन बी बेंड, है ना? मेटल के वायर हम बेंड कर सकते हैं। वही आप देखिए कि अगर हम लोग लकड़ी देखते हैं तो लकड़ी को ऐसा बेंड नहीं किया जा सकता,
थोड़ा टेंसाइल टेन लकड़ी में भी होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन ज्यादा करेंगे तो टूट जाती है लकड़ी। बट मेटल का पीस लेते हैं, मेटल का कोई तार लेते हैं और उसे हम लोग ऐसा बेंड करते हैं तो बेंड हो सकती है। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड, यू कैन से, हैविंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जो कि नॉन मेटल के अंदर नहीं है। नॉन मेटल में कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, नॉन मेटल में कोई मैलिएबिलिटी नहीं है, नॉन मेटल में कोई डक्टाइलिटी नहीं है। मतलब नॉन मेटल का ना थिन शीट में कन्वर्जन किया जा सकता है, नॉन मेटल का ना वायर में कन्वर्जन किया जा सकता है। लाइक यस, देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शंस। आज की तारीख में हम प्लास्टिक के शीट वगैरह बना सकते हैं हम लोग, तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल और उसके शीट्स बना सकते हैं, लेकिन हैमर करके नहीं बना सकते। हम लोग जो मैलिएबिलिटी डक्टाइलिटी की बात करते हैं वो अलग है, हम वायर में स्ट्रेच नहीं कर सकते उन्हें। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज व्हाट वी कैन से रिगार्डिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मुझे लगता है ये प्रॉपर्टीज है। और इसके अंदर मैं वापस आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब आप बारीकी से पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक को, तो इसके अंदर जरूर आप एक्सेप्शनल जो बातें हैं वो बातें याद रखिएगा। जैसे इसके अंदर और एक पॉइंट ऐड हो सकता है, जैसे अभी किसी ने कहा था कि मेटल्स आर हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो है, बहुत लो होता है। द रीजन बिहाइंड दैट आपने क्या है, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जो नॉन मेटल्स दिखाते हैं जनरली वो गैसियस स्टेट में होते हैं, और गैसियस स्टेट में है मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है। रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में है, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। और मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेज में, उसे गैसेस पे कन्वर्ट करना है तो हीट करना पड़ेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एब्सोल्युटली ज्यादा है। बट देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शंस ना, कुछ एक्सेप्शंस जरूर है वहां पे। इसके अंदर आप देखते हैं तो जरूर एक्सेप्शन कुछ मिलते हैं आपको, कि डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन मेटल है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 25,000 के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। तो डायमंड एक वहां पे एक्सेप्शन है, जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। एट द सेम टाइम मेटल के केस में देखते हैं तो टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, और having the highest melting point, and that is Yes. 3420 degree Celsius. तो ये जो बातें है ना, ये आप जरूर याद रखिएगा कि टंगस्टन इज द एलिमेंट which is having highest melting point, and that is 3422 degree Celsius, मतलब 3,500 ऑलमोस्ट आता है। तो ये फिगर भी याद रखिएगा, वो एलिमेंट भी याद रखिएगा। नॉन मेटल में डायमंड को याद रखिएगा बिकॉज इट इज अ एक्सेप्शनल केस। सो इस तरीके से सारे केसेस आ जाते हैं कि क्या याद रखना इस टॉपिक के अंदर, क्या नहीं। क्लियर विद दिस? Hello, sir. यस यस, Sir, I have a doubt. बोलो बोलो। Sir, how to study inorganic properly? Because inorganic is too lengthy and exception. So, how we study properly inorganic, sir? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बराबर है ना? Yes, sir. Inorganic chemistry. ओके, आप देखिए ना कि फिजिकल केमिस्ट्री की अपनी एक स्पेशलिटी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी एक स्पेशलिटी है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी एक स्पेशलिटी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट भी है लेकिन वो कम है, और वहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है, इंफॉर्मेटिव ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंफॉर्मेटिव ज्यादा है बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज नॉट लाइक ए कॉन्सेप्चुअल पार्ट, इट इज मोर इंफॉर्मेटिव पार्ट। उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट कम होता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है। कौन से एलिमेंट का किसके साथ क्या क्या रिएक्शन होगा, ये अलग अलग बात है। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है फिजिकल केमिकल, वो याद रखने की बात है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लर्निंग पैटर्न पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मगिंग हम जिसे कहते हैं, थोड़ा सा मगअप टाइप ऑफ पैटर्न, वो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत भी है। मैं तो हमेशा ये बच्चों को कहता है कि जिन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से पढ़नी है उन्हें पीरियोडिक टेबल एट द टिप ऑफ टंग चाहिए। पीरियोडिक टेबल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी। मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल मैंने बताया कि जिस बच्चे का पीरियोडिक टेबल परफेक्ट होगा, इन एंड आउट कॉन्सेप्चुअली, पीरियोडिक टेबल है क्या, कितने एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है, किस एलिमेंट की क्या खासियत है, कौन से ग्रुप की पीरियड की क्या खासियत है, कौन सा एलिमेंट वहां पे क्यों रखा गया है, वगैरह वगैरह। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन। 11th स्टैंडर्ड में और एक चैप्टर भी है पीरियोडिक टेबल नाम का, वहां पे डिस्कस भी करेंगे हम लोग, और आपने भी ऑलरेडी डिस्कस किया है स्कूल ऑफ एलिमेंट्स वगैरह 10 में, वहां पर भी आता है। तो वहां पे ये है कि पीरियोडिक टेबल, अगर आप लोग ये पीरियोडिक टेबल इज द एबीसीडी टू एंटर इनटू द इंग्लिश लाइक दैट, वे फंडामेंटल्स है। तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर पीरियोडिक टेबल आप ठीक से प्रिपेयर करते हो तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी बन जाता है, इजी हो जाता है उस हिसाब से कंपेयर टू अदर्स। जिन बच्चों को पीरियोडिक टेबल की आइडिया नहीं है, पीरियोडिक टेबल के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के साथ रिलेटेड और वो एक कॉन्सेप्ट है, इट्स ग्रेटेस्ट क्रिएटिविटी कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी, फर्दरमोर इज द मोर इंफॉर्मेटिव पार्ट।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस हिसाब से इंफॉर्मेटिव पार्ट है, वहां पे लर्निंग के लिए काफी अच्छा स्कोप है, मगिंग के लिए काफी अच्छा स्कोप है. सो कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन देन फर्दर विद सम क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, सो देन इट बिकम्स इजी. तो मुझे लगता है उस हिसाब से हम अगर चलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो देन एंड देन ओनली इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस. तो ये उसके अंदर का एक पार्ट है. क्लियर विद दिस? थैंक यू सर. कोई चैप्टर अगर मेरे सामने आ जाता है या आपको है तो मैं उसके अंदर बता दूंगा आपको कि हाउ इट वी कैन मेक इट इजी फॉर दिस, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेटलर्जिकल टॉपिक, जिसके अंदर मैंने बताया आपको कि व्हेन वी हैव टू एंटर इनटू द मेटलर्जिकल पार्ट, दैट इस चैप्टर के अंदर ये इस तरीके से पढ़ना है. और खास करके मेटलर्जी चैप्टर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट. मेटलर्जिकल चैप्टर ये ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. जिनको पीरियड टेबल थोड़ा अच्छा समझ में आता है उनको एक मेटलर्जिकल चैप्टर मेटलर्जी चैप्टर समझना आसान होगा. बताता हूं मैं कैसे कैसे हम धीरे आगे चलेंगे. अब देखिएगा, अभी तक जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया, वो जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट ये है, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एज वेल एज द नॉन मेटल्स, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर. नाउ हम जब थोड़ा सा आगे इस चैप्टर के अंदर जाना चाहेंगे, तो जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, वैसे केमिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे डिस्कस करने पड़ते हैं. तो एवरी मेटल हैज सम सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरी नॉन मेटल हैज सम सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, ये किसी भी बच्चों के लिए और किसी भी टीचर के लिए है. सारे रिएक्शंस याद रखना आउट ऑफ स्कोप है. सो फर्स्ट गेट क्लियर विद दिस पार्ट. किसी भी टीचर के लिए इवन, एंड बच्चों के लिए तो 100% ऐसा है ही है. मतलब एज और एक्सपीरियंस सारे बच्चों की अगर बातें करते हैं, तो किसी भी प्रोफेसर के लिए, किसी भी बच्चों के लिए सारे रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स याद रखना डिफिकल्ट बात है, सिंपली आउट ऑफ द स्कोप भी है. और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि सारे रिएक्शन एज इट इज हर बच्चों को पता होना चाहिए, हर प्रोफेसर को पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट. Every element reacts with some other elements in many ways and gives many different types of product. So when it comes to the chemical property, every metals and non-metals has many chemical properties. So in order to make it easy, in order to make it bearable, it's designed in very simple और proper way. तो सबसे पहला जो रिएक्शन आएगा उनका, मतलब किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन जो आता है, वो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ. ये बहुत कॉमन रिएक्शन हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी आता है. सो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन काफी बड़ा है और जनरली ये मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जो बच्चा ये समझेगा उसे रिएक्शन करना इजी जाएगा. क्लियर? कोई भी एलिमेंट लेते पीरियड टेबल का, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड. ऑक्साइड तैयार कर. तो ऑक्साइड तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं. अभी आपने कहा था कि करोजन भी पार्ट मेटलर्जी का है, तो करोजन एक्चुअली मेटलर्जी का पार्ट नहीं है, बट मेटलर्जी का आगे का पार्ट है. क्योंकि कोई भी मेटल बनाने के बाद वो मेटल करोड ना हो, इसीलिए कुछ एक्टिविटी करने पड़ते हैं. And that is called as purification of the metals and passivation of the metals, or treating the metal with different substances in order to avoid its corrosion further. So corrosion is a further part after the metallurgy. But corrosion के अंदर हमने ये देखा है कि metal reacts with oxygen to form metal oxides. So iron oxide, copper oxide, silver oxide, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी मेटल लीजिए ना, हर मेटल का ऑक्साइड है. वो नेचुरली भी एग्जिस्ट होता है, क्योंकि नेचुरली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो उसका ऑक्साइड तैयार करेगा. ये सिंपल बात है. तो रिएक्शंस के अंदर मेटल हो या नॉन मेटल हो, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड. तो अभी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड तैयार होता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ये समझने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें याद रखनी पड़ती है, तब जाके रिएक्शन थोड़ा वेरिएबल होता है. जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम, अब ये रिएक्शन देखा है आपने कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो जनरली ये कैसे लिखा जाता है कि यहाँ पे ट्वाइस आएगा, यहाँ पे O2 आएगा और ट्वाइस H2 आएगा. ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शन लिखा जाता है. तो इसके अंदर देखते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ एक ही मैग्नीशियम आता है, एक मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन आता है. उसके पीछे रीजन ऐसा है कि मैग्नीशियम हैज वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन हैज वैलेंसी -2, और इसलिए एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन ही आएगा, क्योंकि +2 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय -2. तो वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है. सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और उसके साथ जुड़ा है. तो दिस हैज टू बी न्यूट्रलाइज्ड, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड है. वही हम सोडियम की केस लेते हैं. तो देखिए ना, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NaO. अभी ये ऐसा तो होता नहीं, NaO तो कभी हो नहीं सकता. उसके पीछे रीजन देखिएगा. सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज होता है.
चार्ज देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको समझता है वो कौन से ग्रुप से उसके हजरत में समझता है। तो इसके ऊपर अगर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो इसके न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे +2 होना जरूरी है या फिर यहाँ पे -1 होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे अगर चॉइस लगा देता हूँ तो एक का चार्ज +1, दो एटम का चार्ज बनेगा +2, तो और ये +2 ये -2 बनेगा न्यूट्रल, सो दैट्स व्हाई हियर ये। तो अब इधर लगाता हूँ तो ये 2 बनेंगे, तो ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन किया है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस करना पड़ता है। बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस, charges on this atom must be equal to charge on this atom to have the neutral compound, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। इसीलिए ऑक्सीजन के एक एटम के साथ सोडियम के 2 एटम रिएक्ट होना जरूरी है, तब जाके चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। अभी सोडियम टॉइस तो लिखा हमने, बट ऑक्सीजन ऐसा नहीं लिख सकते, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है, तो 2 2 4 बनता है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, 4 1 4 बनता है, तो नाउ बैलेंस, तो अभी ये 4 बनी, 2 बने, तो मुझे यहाँ पे टॉइस लिखना पड़ता है। This is balanced chemical equation, but molecular formula क्या है, Na2। यहाँ पे क्या है, MgO। MgO क्यों है, magnesium has +2 charge, oxygen has -2 charge, that got neutralized from MgO. Sodium has +1 charge, oxygen has -2 charge, that's why sodium has to come in a 2. So 2 atom of sodium reacts with 1 atom of oxygen. This is oxide. तो इसके अंदर मैंने बताया क्या आपको कि जब भी कभी रिएक्शन होता है किसी भी दो, चाहे मेटल्स की बात करें या चाहे नॉन मेटल्स की बात करें ऑक्सीजन के साथ, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बैलेंस से ऑक्सीडेशन स्टेट समझिएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो इसके यहाँ पे 2 एटम आना जरूरी है। यहाँ पे इसकी 2 होने के कारण 2 2 4, तो इसके 2 है तो 2 2 4 आएगा, तो इसका 1 ही आएगा, तो इसके 1 के साथ इसका 1 ही आएगा, इसके 2 के साथ इसके 2 एटम्स आए अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखते समय बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस इज द मस्ट। जैसे हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा है, वैसे बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस मस्ट, देन इट बिकम्स इजी टू राइट द रिएक्शन। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है सबका चार्ज एक बार समझ लेंगे, और वो पीरियोडिक टेबल चैप्टर के साथ ही समझता है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैज द चार्ज +1, सेकंड ग्रुप एलिमेंट हैज द चार्ज +2, थर्ड ग्रुप एलिमेंट हैज द चार्ज अकॉर्डिंगली, सो चार्ज उसी हिसाब से बढ़ता है, कम होता है, तो उसी आधार पर पता चलता है कि यार ये एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए। चाहे आपका लर्न हो या ना हो, आप इस अंदाजे से बना सकते हो, अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर है कि इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है, तब सो दिस विल गिव यू। तो इस हिसाब से वो आगे चलता है और इसी तरीके से वो आगे चलता है। दैट्स व्हाट वी कैन से रिगार्डिंग दिस रिएक्शंस। तो व्हेन इट कम्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला रिएक्शन आता है ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज़ इट्स वेरी कॉमन, एवरी एलिमेंट ऑलमोस्ट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। दूसरा आता है क्योंकि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ रिएक्शन होता ही होता है। दूसरा आता है रिएक्शन विद वाटर, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसकी रिएक्शन विद वाटर आएगा, क्योंकि वाटर इज आल्सो वेरी कॉमन। सो वाटर के साथ रिएक्शन आएगा, ये दूसरी बात है, और वाटर का H2 होता है, तो वो रिएक्शन क्या हो सकता है हम समझ सकते हैं। लेकिन वाटर दिया गया है क्योंकि वाटर बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लार्ज होता है, वाटर में कांटेक्ट कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सो ये रिएक्शन सबसे कॉमन और जरूरी हमारे लिए बनते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, एंड देन you can say reaction with acid and reaction with base, because these are the main substances with which we deal in our daily routine life or chemistry or in science. So that's why उनके साथ रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो कल के लेक्चर में हम ये थोड़ी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एंड देन विल एंटर इनटू द मेटलर्जिकल पार्ट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। Okay, sir. Bye.